Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Mulix Academy. Today's topic is flame photometry. What is flame photometry? So let's start. See, flame photometry is a type of atomic spectroscopy. So first is what is spectroscopy? Spectroscopy is it measures and interprets the electromagnetic spectra. मतलब जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं, दैट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड इट इज़ अ टूल to study the structure of atoms and molecule. So we are study the structure of atoms, so it is called atomic spectroscopy, also called atomic emission spectroscopy. Actually spectroscopy is of three types. First is there are three types of spectroscopy, atomic spectroscopy. First is atomic absorption spectroscopy. Atomic absorption spectroscopy. Then second is atomic emission spectroscopy, AES, and third will be atomic fluorescence spectroscopy. Atomic fluorescence spectroscopy. So spectroscopy is same, we are studying the structure of atom, but the process is different. Like in this we are studying the absorption wavelength, we are studying the emission radiation, or we are studying the fluorescence. So on the basis of this there are three types of spectroscopy. So flame photometry is the type of atomic emission spectroscopy. Flame photometry is generally used to detect alkali metals like group 1 metals, sodium, potassium, lithium, etc., and alkaline earth metal like group 2 metals, calcium, magnesium, barium, etc. तो इनकी स्टडी को इनको डिटेक्ट करने के लिए हम alkali metal, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और ग्रुप 2 कैल्शियम, मैग्नीशियम, बैरियम, इनको स्टडी करने के लिए वी यूज्ड जनरली फ्लेम फोटोमेट्री. Now what is the basic concept behind the flame photometry? See, first in this technique liquid sample will be used. Like if we have any metal, if any solid, but we have to convert it into the liquid form. Sample should be in liquid form. अगर नहीं है liquid में तो thorough the process we have to convert it into the liquid sample. ओके, सो इस टेक्निक में लिक्विड सैंपल ही यूज्ड होगा जिसमें कि वो मेटल प्रेजेंट होगा जो हमें डिटेक्ट करना है. नेक्स्ट सॉल्यूशन को हम फ्लेम के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे बिकॉज इट्स अ फ्लेम फोटोमेट्री. सो सॉल्यूशन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ फ्लेम एंड देन इट इज अलाउज टू वेपराइज. जो सैंपल होगा वो वेपराइज होगा. आफ्टर वेपराइजेशन जो सॉलिड मेटल है वो कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस मेटल एटम में. ओके, देन ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम जो गैसियस मेटल एटम है it will get excited and unstable, and the unstable excited atom emit photon when returned to lower energy state. We have already seen in this is chemistry, like this is the ground state. Okay, and when there is an excitation, then electron, this is the excited state, then electron will move to excited state. This is the excited state. So atom will get excited, but this excited state is unstable. So what will happen? The electron will come vapas into the ground state. So when it will come back, it will emit photon. It will emit radiation. और इसी emitted radiations की study हम इसमें करते हैं. Okay, so the unstable excited atom emit photons when returned to lower energy state or ground state. This is the lower energy state and this is the higher energy state. Okay, the measurement of emitted photon form the basis of flame photometry. In photons की study जो है वो it is the base of flame photometry. So what is happening in this technique? We are taking the liquid sample, then sample will be introduced into the flame,
then it will vaporize, then after vaporization जो solid metal है it will convert to gaseous metal, and this gaseous metal get excited and then it come back to the ground state, and in this process it will emit photon, and the measurement of emitted photon is the basis of flame photometry. Okay, and the color of flame, color of light means जो flame की जो light है, जो flame का जो color है, it tells us which metal is present. Okay, if flame color is like if flame color is violet, it means potassium is present. If flame color is red, it means lithium is present. So flame का जो color होगा, it will tell which metal is present, कौन सा metal present है, और जो intensity होगी उस color की वो बताएगी how much of metal is present, the concentration of metal. Okay, so color will tell which metal is present, and intensity of color will tell how much of metal is present. So this is the basic concept of flame photometry. Like see, this is the table which will tell the metal and the flame color of that metal. Like potassium is present, then the flame color will be violet color. If lithium is present, the flame color will be red. If calcium is metal is present, then flame color will be orange. If sodium is present, the flame color will be yellow, and if barium is present, the flame color will be lime green. So this table shows the flame color and the metal presence of metal. Okay, see, this is the diagram. This is the sample in a liquid form. Then this is the mixing chamber and nebulizer and mixing chamber. इसमें देखिए एक इनलेट ये है, एक इनलेट ये है. एक इनलेट से ऑक्सीजन एंटर कर रहा है, एक से फ्यूल गैस, मतलब आप एयर दे सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं. तो इसकी वजह से क्या होगा, और ये सैंपल, तो 3 इनलेट हो गए, एक से सैंपल, ऑक्सीजन एंड फ्यूल गैस, ये सब एंटर कर रहे हैं, और प्रेशर है, एयर है, उसकी वजह से क्या होगा, वो जो लिक्विड सैंपल है वो क्या होगा, एरोसॉल. इट मीन्स इट विल कन्वर्ट इनटू मिस्ट. स्प्रे करते हैं ना हम, लाइक इसमें कन्वर्ट होगा प्रेशर की वजह से, और फिर जब ये ड्रॉपलेट्स कॉन्टैक्ट में आएंगे फ्लेम के, दिस इज द फ्लेम. ओके, सो बर्नर है यहाँ पर, तो इसकी फ्लेम के कांटेक्ट में आएंगे. देन फिल्टर क्या होगा, इसको मोनोक्रोमेटर की तरह एक्ट करेगा और फिक्स वेवलेंथ की लाइट को जाने देगा. देन डिटेक्टर होगा जो इसको डिटेक्ट करेगा, और ये रीड आउट डिवाइस होगी जो रीडिंग देगा हमें. तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री. सी द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री. What is the principle? The compounds of the alkali and alkaline earth metal, like group 1, this is group 1 and this is group 2. So the compounds of the alkali and alkaline earth metal dissociate into atoms when introduced into a flame. जब flame पर हम उस liquid sample को जब introduce करते हैं तो वो अपने atoms में dissociate हो जाते हैं. Then these atoms get excited to higher level. I have already told you, like this is the ground state and this is the excited state. This is the ground state. Electron will move here, okay, and it will return back to ground state, and in this process it will release photon. So these atoms get excited to higher level, then excited state is unstable, so electron will return to ground state and emit radiation. So this is the principle of flame photometry. Now the components of flame photometer we have already seen in the diagram. There was a burner. Burner is the source of flame. जहाँ से flame जो है, flame का जो source है, that is burner. Okay, and it maintain a constant temperature. It can be maintained at a constant temperature, and the temperature of the flame is the very critical factor in the flame photometry. Flame photometry का जो सबसे critical factor है, that is temperature of the flame. Now we can use two types of burner. First is total consumption burner. In this total consumption, it means the total जो sample है वो totally consume हो जाएगा. In this sample solution is completely burnt. जो सैंपल हम ले रहे हैं वो सैंपल सॉल्यूशन कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, तो सैंपल का लॉस हमको नहीं होगा. ओके, सो 3 इनलेट्स में फर्स्ट आपका सैंपल इनलेट है, सैंपल एंटर कर रहा है. सेकंड में ऑक्सीडेंट था. 3 इनलेट्स में आपका एक में सैंपल इनलेट था, देन ऑक्सीडेंट एंटर कर रहा है, ऑक्सीडेंट इनलेट है, एंड देन फ्यूल गैस इनलेट
इनलेट है। तो ये 3 इनलेट होते हैं। नाउ जो फ्यूल यूज होता है इसमें, दैट कैन बी हाइड्रोजन और प्रोपेन, एंड द ऑक्सीडेंट विल बी एयर और ऑक्सीजन। ओके, सो 2 इंडेंट जिसमें फ्यूल और ऑक्सीडेंट एंटर करते हैं। फ्यूल कैन बी हाइड्रोजन और प्रोपेन, और ऑक्सीडेंट एयर और ऑक्सीजन। देन सैंपल सॉल्यूशन इज एस्पिरेटेड थ्रू कैपिलरी बाय हाई प्रेशर। और तीसरा जो इनलेट होता है वो सैंपल के लिए होता है। तो फर्स्ट इनलेट ये, सेकेंड इनलेट ये, थर्ड इनलेट ये। सैंपल जो होता है वो एस्पिरेट होता है थ्रू द कैपिलरी बाय हाई प्रेशर, क्योंकि प्रेशर मेंटेन किया जा रहा है जो फ्यूल और ऑक्सीडेंट का इनलेट है उसके थ्रू। एडवांटेज क्या है इस बर्नर के? एंटायर कंजम्पशन ऑफ सैंपल जो है वो टोटली कंज्यूम हो जाएगा। एंड डिसएडवांटेज क्या है? ड्यू टू लार्ज ड्रॉपलेट्स, इसमें ड्रॉपलेट्स जो होंगी वो लार्ज साइज की होंगी। तो ड्यू टू लार्ज ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस टाइप ऑफ बर्नर, द सिग्नल्स गिव नॉइज एंड फ्लेम्स ऑब्टेन्ड इज टर्बुलेंट। जो सिग्नल्स प्रोड्यूस होंगे वो नॉइजी होंगे, एंड जो फ्लेम जो होगी वो टर्बुलेंट होगी। टर्बुलेंट मीन्स वायलेंट शेकिंग होगी। जो फ्लेम होगी वो काम नहीं होगी, वो शेक करेगी। सो फ्लेम ऑब्टेन्ड इज टर्बुलेंट, दिस इज द डिसएडवांटेज। सेकेंड बर्नर इज प्रीमिक्स बर्नर. First was the total consumption burner, and in the second burner is premix burner. In this burner, the sample solution, fuel and oxidant are mixed before aspiration and reaching to flame. इसमें पहले ही सैंपल, फ्यूल और ऑक्सीडेंट को मिक्स कर लिया जाएगा, फिर एस्पिरेट किया जाएगा और फिर फ्लेम तक पहुंचाया जाएगा। तो एडवांटेज क्या होंगे इसके कि फ्लेम जो है वो नॉन टर्बुलेंट होगी, फ्लेम जो होगी वो काम होगी। ओके, बहुत शेक नहीं करेगी। और फ्लेम जो होगी वो नॉइजलेस होगी। इसमें नॉइजी था, इसमें फ्लेम जो होगी वो नॉइजलेस और स्टेबल होगी। बट डिसएडवांटेजेस क्या है इसके कि ओनली 5% ऑफ सैंपल सॉल्यूशन विल बर्न एंड 95% जो होगा वो ड्रेन आउट हो जाएगा। तो सैंपल जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। 95% जो है वो ड्रेन हो गया और ओनली 5% सैंपल सॉल्यूशन ही बर्न होगा। तो ये 2 तरह के बर्नर, total consumption burner and premix burner. Now second component is nebulizer and mixing chamber. हमने देखा था डायग्राम में, नेबुलाइजर एंड मिक्सिंग चैम्बर का काम क्या होता है? इट कन्वर्ट्स लिक्विड सैंपल इनटू मिस्ट. मिस्ट इज व्हाट? लाइक जब जो वाटर जैसा सैंपल आ रहा है तो वो स्प्रे में कन्वर्ट हो जाए। ओके, जो प्रेशर की वजह से जो फ्यूल गैस और ऑक्सीडेंट आ रहे हैं उनके प्रेशर की वजह से इट विल कन्वर्ट इनटू स्प्रे. So it will sample will convert into mist and sprays the fine particle. और ये जो fine particles होंगे ये कहाँ स्प्रे हो जाएंगे? फ्लेम पर, into flame using compressed jet of gases. फ्यूल और एयर जो आ रहा है उसकी वजह से जो सैंपल आ रहा है, जो वाटर जो सैंपल लिक्विड फॉर्म में है वो अब क्या हो जाएगा? स्प्रे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ द फिल्टर और मोनोक्रोमेटर. सैंपल में कंटेन मैनी एलिमेंट. जो अपन सैंपल ले रहे हैं उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि रेडिएशन एमिट कर सकते हैं, तो फिर ये डिस्टर्ब करेगा, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाएगा. सो वी विल यूज फिल्टर. फिल्टर क्या करेगा? विल आइसोलेट द वेवलेंथ टू बी मेजर्ड. फिल्टर जो होगा वो उस वेवलेंथ को आइसोलेट कर देगा जो हमें मेजर करनी है फ्रॉम दैट ऑफ इररेलेवेंट एमिशन. जो इररेलेवेंट एमिशन है उससे अपना फिल्टर हो जाएगा वो वेवलेंथ जो कि हमको आइसोलेट और मेजर करनी है. नाउ द फोटो डिटेक्टर. द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द फ्लेम. अब जो फ्लेम से जो रेडिएशन एमिट हो रहा है उनकी इंटेंसिटी को मेजर किया जाएगा बाय द फोटो डिटेक्टर. और एज अ फोटो डिटेक्टर वी कैन यूज फोटो सेल और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. We can use as a detector, photo detector. Now the next components is readout system. रीडआउट सिस्टम जो होगा वो क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा सिग्नल्स को गिवन बाय द डिटेक्टर. डिटेक्टर जो सिग्नल देगा उनको रीड करेगा और उनको रिकॉर्ड करेगा और उसके बेस पर वो रीडिंग आउटपुट देगा. सो इट गिव्स द मीटर रीडिंग ऑफ एमिटेड लाइट एंड एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट. सो दीज आर द कंपोनेंट्स. फर्स्ट वाज द बर्नर, देन सेकंड नेबुलाइजर एंड मिक्सिंग चैम्बर. बर्नर जो होगा वो सोर्स ऑफ फ्लेम होगा. देन नेबुलाइजर और मिक्सिंग चैम्बर में इनलेट्स होंगे जिनसे फ्यूल गैस और एयर जो है वो एंटर करेगी, जिसकी वजह से जो सैंपल हमने एंटर करवाया है वो स्प्रे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. देन ये स्प्रे पार्टिकल फ्लेम के कॉन्टैक्ट में आएंगे, फिर वहाँ से
उसके बाद फिल्टर होगा जो कि फिल्टर क्या करेगा, आइसोलेट कर देगा उन वेवलेंथ को जो कि हमें मेजर करनी है। देन फोटो डिटेक्टर उसको रीड करेगा, सॉरी इंटेंसिटी जो है, रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है उसको मेजर करेगा और फिर रीड आउट सिस्टम जो है वो रीडिंग देगा। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री. Flame photometry has both quantitative and qualitative application. In this flame photometry, we can detect the presence of any specific element in the given sample. कोई भी sample है उसमें कोई specific element जो present है वो अपन उसकी presence को अपन detect कर सकते हैं by the flame photometry. Second is the presence of some group second elements are critical for soil health. Group second elements क्या थे? ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स थे लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, दीज आर द ग्रुप सेकेंड एलिमेंट. सो इनकी जो प्रेजेंस होती है वो सॉइल में बहुत क्रिटिकल होती है फॉर सॉइल हेल्थ. कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी जो प्रेजेंस है वो वेरी क्रिटिकल फॉर सॉइल हेल्थ. तो हम इनकी ये प्रेजेंट है या नहीं है, सॉइल सैंपल को हम लेके इनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं बाय कंडक्टिंग फ्लेम टेस्ट. और उसके बेस पर हम सॉइल की हेल्थ को मेज़र कर सकते हैं. और अगर सॉइल की हेल्थ नहीं है अच्छी, इट मीन्स ये जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो ग्रुप सेकेंड एलिमेंट है अगर वो अच्छी कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट नहीं है सॉइल में, तो हम उस सॉइल को सप्लाई कर सकते हैं विद स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स. उसको फर्टिलाइज कर सकते हैं सॉइल को विद स्पेसिफिक फर्टिलाइजर जिसकी भी प्रेजेंस या जिसकी भी एब्सेंस है उसके. तो उस केस में हम सॉइल को विद स्पेसिफिक फर्टिलाइजर उसको सप्लाई कर सकते हैं. So this is the second application of flame photometry. Third is it is used to estimate sodium, potassium, calcium, lithium etc. in serum, urine, CSF and other body fluid. अपनी बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं उनमें इन सारे अमाउंट, इन सारे जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनकी प्रेजेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन सीमेंट. सीमेंट में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है उसको भी हम फ्लेम फोटोमेट्री के थ्रू मेजर कर सकते हैं. और पेट्रोल में लेड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम मेजर कर सकते हैं बाय द फ्लेम फोटोमेट्री. एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट इज सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट जूसेस एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस में भी हम उनको एनालाइज कर सकते हैं और कौन सा मेटल कितनी कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, कौन सा एटम. Now the advantage of flame photometry. The method of analysis is very simple and economical. जो method है वो बहुत simple है और economical है, quick है, convenient है और sensitive analysis है. मेथड जो है वो सेंसिटिव है, क्विक है और कन्वीनियंट है. और ये जो मेथड है, जो फ्लेम फोटोमेट्री है, वो अगर एटम जो है बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन में भी अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्ट कर सकता है. So even very low concentration of metals in the sample can be determined and it is both quantitative and qualitative in nature. मेटल प्रेजेंट है या नहीं ये भी बता सकता है और कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसमें, वो भी मेजर कर सकता है. Now the disadvantage of flame photometry. डिसएडवांटेज ये है कि एक्यूरेट कॉन्सेंट्रेशन जो है मेटल आयन की वो अपन मेजर नहीं कर सकते हैं. The accurate concentration of the metal ion in the solution cannot be measured. And the second disadvantage is only liquid sample may be used. So कई केसेस में क्या होता है कि जो सैंपल प्रिपरेशन होती है वही बहुत लेंदी हो जाती है. सैंपल सॉलिड स्टेट में है, हमें उसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है. तो जो सैंपल प्रिपरेशन है वो कई केसेस में बहुत लेंदी हो जाती है. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.